बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद नवीद जदून है। मैं तमाम लोगों को ABCD के चैनल TV चैनल के बिहाफ पे खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि कोविड-19 के दौरान हमने सीरीज़ ऑफ लेक्चर टूर्स शुरू किया था और इसके अंदर हमने टाइम, टेक्नोलॉजी और टैलेंट को यूज़ करते हुए इस टाइम को बेटर यूटिलाइज़ किया। जैसे कि आपको मालूम है, इस पेंडेमिक की वजह से नॉर्मल लाइफ से हम हट के एक एडॉप्टेड लाइफ की तरफ जा रहे हैं और ख़ासकर जो हमारा शोबा है, जो लाइफ स्टॉक पोल्ट्री का या एक्वा का है, उसके अंदर बहुत सी अडॉप्टेशन और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं। और हमने ये भी देखा कि जो एनिमल प्रोटीन बेस्ड चीज़ें हैं उनकी डिमांड भी बढ़ रही है और उनका इम्यूनिटी के अंदर बड़ा कलीदी रोल है। इसी सिलसिले में हमने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस भी की, जिसके अंदर हमारी फार्मिंग भी थी, हमारी न्यूट्रिशन भी थी, हमारे डिजीज़ चैनल थे, मार्केट प्रेफरेंसेस थी, मार्केट की क्या डायनामिक्स, उन सब पे डिस्कशन की। और आज हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ड्यूरिंग और आफ्टर पेंडेमिक इस कोविड-19 के बाद जो सिचुएशंस ट्रांसफॉर्म होंगी, स्पेशली जो हमारा फ्यूचर ऑफ फार्मिंग है वो क्या होगा। इसके लिए हमने इनवाइट किया हमारे हरदिल अजीज़ और हमारे लेजेंड प्रोफेसर डॉक्टर सरवर साहब को कि वो हमें बताएं कि फ्यूचर ऑफ फार्मिंग वो क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं या हमारे देखने और सुनने वालों को इसके बारे में क्या बताएंगे। तो आई फॉर्मली वेलकम प्रोफेसर डॉक्टर सरवर साहब, फॉर्मल वाइस चांसलर गोमर यूनिवर्सिटी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। फ्लोर इज़ योर्स। मैं जस्ट हाउस रूल बता दूं अपने देखने और सुनने वालों को कि सर पहले प्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद हम आप लोगों से क्वेश्चन लेंगे और उन क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे। जिन लोगों की तशनगी रह जाएगी उनको बाद में हम ईमेल पे भी और बाद में डायरेक्ट थ्रू सरवर साहब के कॉन्टैक्ट से भी हम उनके आंसर उनको दिलवा सकते हैं। तो लेट्स वेलकम अगेन प्रोफेसर डॉक्टर सरवर साहब। सर, स्टेज इज़ योर सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शहजाद साहब, मैं आपका और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का तहे दिल से मशकूर हूँ कि यू हैव प्रोवाइडेड मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज एंड एक्सपीरियंस with the people who are working with livestock or the farmers and the stakeholders. For this, I must appreciate that you are doing a wonderful job. Really, really, this thing definitely would end up into very, very good achievements. And if we can really work with the dedication, with the attentions you people are doing it, hopefully our livestock sector will definitely develop. At the same time, I'm very thankful for Abaidur Rahman because he was in constant contact with me and helped me to settling all these things. So I'm very thankful for all the participants who have spared their time, and hopefully we will share something, particularly what's the significance of farming. Go into the agriculture, it's subsector of agriculture, but its contribution in agriculture has increased about 58, 60, 50, 60% GDP. And when we look the profile of our farmers, about 70%, 60 to 70% smallholder farmers. They are living in the rural areas, and their dependence, if the land holding is there only 6 acres, 8 acres, their dependence is on livestock. And livestock is an engine which could really improve the nutrition of our people, health of our people, which could mitigate that poverty sector if a proper attention is paid to that. So keeping the view, because the farming is topic today, I have worked in about 4 years in fattening, livestock fattening project in LNG department. We will also share the outcome of those, and then in different capacities in dairy farms, in goat farms, and sheep farm. And no, there are certain constraints, but lot of opportunities are there. Now is the time the government has to think about that. Unless we pay attention to the livestock farmer, the poverty issue would not be resolved.
because 60-70% people are involved with, and more than 30-35 million farmers, they are involved with it. And about 45 or 50% employment opportunities are only provided by this small sector. So with this, I'll go to my presentation, and then thereafter, I'll ask questions, would provide opportunity to all our participants for asking questions. This is the talk I prepared when I was a vice chancellor, and I given some in livestock sector, animal production, opportunities and challenges. Now, when we look the population of livestock, the number cattle population is 44.4 million, buffalo more than 37 million, sheep 30 million, goat 72 million. Similarly, horses 0.4, donkeys, mules, and camel. And when we see the diversity, this is in our country, this is a big wealth. The few important breeds I have shown to you, these are of cattle. And we got such a good blood of the cattle and a huge number of breeds, but unfortunately, we are not properly utilizing at a research and development level. And when we go to buffalo, just 5 breeds at this time: Neeli Ravi, Kundi, and Isa Khali. That is from KP. Then sheep breed. This is very interesting. One talk I presented in Indonesia, and I've seen this, shown the same pictures over there. And all the people, Indonesian people, because the goat milk is 2 to 3 times more expensive than the cow milk in that country, they came to me, how you have developed such a wonderful breeds. I told this breeds have been developed by Allah, and now we are trying to further improve them. So this is an area where our farmer can go for do farming and can really have profit, less chances of this loss. These are the horses, breeds of horses in our country. Then camel, we got 4 or 5 type of camel in our country. And the huge diversity, when one was presented, this is bull, this is our, this is जिसको बुरी भैंस कहते हैं, ये हमारी चोलस्तानी है, ये हमारी ये ब्रीड है, ये प्राइस ब्रीड है. और रियली अगर हम इन पे काम करें, इतना हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो हम फर्दर आगे इसको और आगे ले जा सकते हैं. तो कैटल में अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस क्या हैं? A lot of non-descript, low-quality cattle. हमारे पास lot of breeds are there, but they have not been documented, and we have not done huge work to improve them. So you need to be described. Documentation is important for their upgradations, and we can fatten them as such, or could be crossbreeding with some exotic semen, and could be exported as the beef production. Then many breeds, yet none is commercial. Breeds such as Sahiwal and Red Sindhi are very transformative breeds, and a lot of demand is there for good quality semen from proven bulls. Go for that scale, performance, recording, progeny testing, and exporting that semen. If we look into the spread of the Sahiwal, it is in 29 countries. And it means if we 28 countries, they are really working on it, and they are improving their indigenous, maybe Holstein, maybe other breeds with the blood of these animals.
and similarly red Sindhi in 15 countries. When we go into the genetic improvement, the genetic, if you see the Friesian in 1920-30, the milk production of this breed as well as the Sahiwal was almost the same. But with genetic bull selection, now their production has gone more than 9,000, whereas we have really on the same stage, but a little bit of deterioration has taken place. This is Kenya Agriculture Research Institute, and we got the highest number of जो है हमारे साहिवाल के काऊ इस रिसर्च स्टेशन पे हैं, जबकि इस एनिमल्स का घर पाकिस्तान में है और हमारे पास इतना बड़ा हर्ड रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए कहीं भी नहीं है. कैटल में नेक्स्ट जो है मिल्क क्वालिटी इज डिफिकल्ट टू फाइंड, बट द इंडिजिनस कैटल आर ब्लेस्ड विद गुड क्वालिटी मिल्क. ये भी एक डिबेट चली थी, अभी भी चल रही है कि A1 मिल्क है या A2 मिल्क है. A1 milk is poor quality milk, but A2 milk is considered good quality milk, which is associated with poor quality milk with heart diseases, allergy, diabetes, and other diseases. Milk from exotic cattle A1 is associated with these diseases, and we can really label it and commercialize. Then there are a lot of surplus calves. That we have been doing it since long, but a proper market was not available. I worked for almost 4 साल मैंने ये लाइव स्टॉक में फैटनिंग स्कीम पे काम किया. 1000 बफलो काफ और 1000 हमारा वो ये काउ काफ्स होते थे जो हमने फैटन करने होते थे. इनका ग्रोथ रेट, इनकी बाकी जो परफॉर्मेंस वंडरफुल थी. जहां आकर हम स्टक अप हो जाते थे वो मार्केट थी. हम ऑक्शन करवाते थे तो वो जो बुचर्स आते थे या पूल कर लेते थे, पूल करने के बाद वो ले जाते थे. तो गवर्नमेंट ने इसे 6-7 साल स्कीम चलाई और उसके बाद ये बंद हो गई. हेलो, उन दोनों में एक यहाँ एक्सपोर्ट्स का भी शुरू था. ये हमारे गुलबर्ग में एक शॉप थी, मुझे नाम याद नहीं, वो आई थिंक सर का जो है ना इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया होगा. यस सर, उनका इंटरनेट डिस्कनेक्ट. नहीं, चलो वापस आ जाए. आई थिंक सर ने बड़ा अच्छा स्टेज बिल्ड किया कि वी हैव सीन के जो हमारे पास जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए एक जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग या एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है ये बड़ा वाइब्रेंट है और हम एम्प्लॉयमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स जैसे सर एक मोमेंटम बिल्ड कर रहे थे कि हमारी जो लोकल ब्रीड्स हैं और जो हमारी जो इस वक्त चैलेंजेस हैं उनको अगर हम एड्रेस करें तो क्यों ना. मैं हमारे साथ हारून लोधी साहब बैठे हैं. मीनवाइल सर से भी गपशप करते हैं जितनी देर में प्रोफेसर सरवर साहब वापस आ जाते हैं. हारून साहब का माइक जरा अनम्यूट करिएगा. गुड टू सी यू सर. क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं सर? हाउ इज एवरीथिंग सर? गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम. हाँ यार, अल्लाह का शुक्र है. चले माशाल्लाह. तो क्वारंटाइन सर घर में ही काम हो रहा है सर या नहीं, बेसिकली मैं और वसीम ऑल्टरनेट कर लेते हैं. एक दिन मैं आ जाता हूं, एक दिन वसीम आ जाते हैं. अच्छा, बट नॉर्मली कारोबार वसीम ही देख रहे हैं. मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आ जाता हूं. सो वसीम इज लुकिंग आफ्टर थिंग्स. मैं कहा जवान लोगों को सपोर्ट करें ना, हमारा रिटायरमेंट का टाइम है.
दैट्स गुड। सो सर, आप माशाल्लाह, आपका भी बड़ा वसी तजर्बा भी है और आपने माशाल्लाह इंडस्ट्री के लिए बहुत काम भी किया और कर भी रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो ड्यूरिंग और आफ्टर जो कोविड के इफेक्ट हैं, स्पेशली अगर हम डेयरी के हवाले से बात करते हैं, तो वेयर यू थिंक सी द थिंग्स आर चेंजिंग एंड व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन जो आप समझ रहे हैं कि होंगी, वो इंडस्ट्री के अंदर क्या चीज़ें जो ट्रांसफॉर्म होंगी आफ्टर दिस कोविड इंशाल्लाह? यार देखो, इंडस्ट्री को देखने के लिए ना हमें इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करना पड़ेगा। जो तो है ना 95% हमारा फार्मर, वो छोटा फार्मर है, उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है, दे हैव टू लिव विद इट। ओके। और अगर हमारे पाकिस्तान में कुछ चेंज आनी है ना, तो मेरा ख्याल है वो 95% पे आनी। अनफॉर्चुनेटली हम कारोबार में बैठ के ना, हम वो 95% को भूल के, और हम वो जो 4-5% है ना, जहाँ बड़ा फार्मर है, जहाँ पे आपका B2B कनेक्शन बनता है, हम सारा जोर वहाँ पे लगा रहे हैं। सो उसके इश्यूज आपको भी पता है, B2B के उनमें कुछ लोगों में अफोर्डेबिलिटी है, कुछ लोग आते हैं कारोबार में विद नॉट विद द राइट इंफॉर्मेशन एंड राइट नॉलेज, दे गेट इनटू द कारोबार, 2-3 साल बेचारे परेशान होते हैं, कुछ रह जाते हैं, कुछ निकल जाते हैं। और निकल जाने वालों की परसेंटेज आहिस्ता आहिस्ता इस कोविड की वजह से बढ़ जाएगी, बिकॉज पीछे रिसोर्सेज नहीं है टू गो थ्रू दिस। जो 3 साल वाला एक कर्व होता है ना डेयरी फार्मिंग में, जो पहले 3 साल में आपकी कैश नेगेटिव में आप होते हैं। पहला साल जनरली अच्छा होता है, बट दूसरे साल में और तीसरे साल में आके हंसी निकल जाती है काफी। 100-200 वाला जो फार्मर है उसकी मैं कम से कम बात कर रहा हूँ। सो वो आई थिंक वेट एंड सी ही है। आई कांट से मच, क्योंकि वजह ये है कि कॉस्ट ऊपर जा रही है, और कॉस्ट ऊपर जाने का मतलब ये है कि फार्मर की अफोर्डेबिलिटी फॉर वैल्यू एडेड गुड्स जिनके अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं या जिसमें दूसरी बड़ी कंपनी ऑपरेट कर रही है, वो कम होती जाएगी। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपकी और हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का, कि वो कैसे इस पीरियड में सर्वाइव करेंगी। वो अगर सर्वाइव करेंगी तो फिर लाइफ स्टॉक की डिस्कशन है, अदरवाइज इट बिकम्स अ हिस्ट्री फॉर अस। मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, तो वो जो 95% है ना, उसमें बहुत गुंजाइश है। जो इन्होंने अभी एक चार्ट दिखाया था जिसमें साहिवाल के जो मिल्क प्रोडक्शन है उसका चार्ट उन्होंने दिखाया था। Yeah, there is no reason why that chart could be constant or going down. इतना ज़्यादा रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास हैं जो लाइफ स्टॉक के ऊपर उन्होंने लगाए हैं, लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर, लेकिन दैट वाज मोर फॉर कंट्रोलिंग द डिजीज। जो रियल जेनेटिक इम्प्रूवमेंट है ना, उसके ऊपर काम नहीं हुआ। आई डोंट नो, ये जो नई गवर्नमेंट आई थी, मेरा ख्याल था कि शायद ये थोड़ा सा डिफरेंटली काम करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। आई मीन हमारे, अगर आप देखो, जो हमारी मेन ब्रीड्स हैं, साहिवाल या चुलिस्तानी या फॉर दैट मैटर बफलो, उसमें अगर इंटेलिजेंटली काम किया जाए, जिस तरह इसराइल में हुआ है, जिस तरह बाकी यूरोपियन कंट्रीज में हुआ है, कि आप एक एलीट हर्ड सेलेक्ट करते हैं और उससे यू देन IVF आपके पास टेक्निक है विच इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे पास अभी तक पाकिस्तान में एक भी लैब ऐसी नहीं है जो IVF के ऊपर काम करे। यूनिवर्सिटी ने थोड़ा काम शुरू किया है, बट मेरा यूनिवर्सिटी के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ इसलिए कि देर ट्राइंग टू मेक अ व्हील, और नए सिरे से वो पहिया बनाना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है यार, कमर्शियली ये सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, बट वो कोई भी इन्वेस्टर वो नहीं इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ला सकता, उसके लिए गवर्नमेंट को ही प्लग इन करना पड़ेगा। सो अब आई डोंट नो इस गवर्नमेंट के पास रूट क्या है पहुँचने का। मैंने तो एक दफ़ा कोशिश की थी इमरान खान साहब को खत लिखने की, लेकिन वो फिर रास्ते में ही ब्यूरोक्रेसी में कहीं रह गया। आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट विद दी पंजाब में जो मिनिस्टर साहब हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की थी, बट आई थिंक वो कहते हैं ना, माइंडसेट नहीं है रियली वर्क ऑन दैट लेवल। और मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान को मुश्किल से निकालना है, तो वो 95% को इग्नोर करके नहीं आप निकाल सकते। नहीं, आई थिंक सर इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। यू जस्ट मेड अ वेरी सिंपल कमेंट और बड़ा आपने जनरसली उस पर बात की कि 95% शुड बी आर टारगेट। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली जो कुछ चीज़ों में, बाकी तो नंबर ऑफ लिस्ट है जिसके अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एक पेस है जो कि पब्लिक की और प्राइवेट की पेस सेम होनी चाहिए, जो कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि आपने भी बोला कि वी शुड लर्न फ्रॉम दी अदर इन्वेंशंस एंड वी शुड मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट वे फॉरवर्ड क्या, और उसका पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली जो मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है कि जो इस 95 को अप्रोच करने के लिए जो फैसिलिटेशंस है ना, या जो सपोर्ट रोल है, वो गवर्नमेंट को होना चाहिए। आज आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। यार देखो, ये जो IVF वाला है ना, उसमें मैंने बड़ी एडवांस लेवल के ऊपर इसके ऊपर वर्किंग की थी। इनफैक्ट आई लॉस्ट a local representation of one of the biggest company in the world IVF की वजह से, because financially it was not making sense and they were pushing कि जी आप इसमें इन्वेस्ट करें। मुझे अगले 5 साल तक उसमें रिटर्न्स नहीं नजर आ रही थी जो इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करें। सो आई वेंट टू द गवर्नमेंट, आई वेंट टू ये जो USAID एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड। ये काम मेरा ख्याल है गवर्नमेंट लेवल पे ही लेना पड़ेगा। और ये कोई 20 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट डाले तो फिर शायद इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आए, एंड देन यू विल रियली सी कि जो आपका वॉल्यूम है वो मल्टीप्लाई करेगा। बिकॉज जब आप 95% को एड्रेस करते हैं ना, तो क्वांटम इतना ज़्यादा है कि वो आपके एकदम इट विल स्टार्ट गिविंग रिजल्ट्स। ऑफ कोर्स इसमें वो टाइम फ्रेम वही वो लाइफ स्टॉक में 10 से 15 साल का टाइम फ्रेम होता है, बट इन 10-15 years यू विल गेट समवेयर। अभी जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, वी नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। जो डॉक्टर साहब ने चार्ट दिखाया साहिवाल की मिल्क प्रोडक्शन का, इफ दैट गोज लाइक दिस और फर्दर गोज डाउन, अभी तक हमारे स्टैटिस्टिक्स आप देख लें, वो सारे स्टैटिस्टिकल डेटा है। हमें पता ही नहीं है कि टोटल जानवर कितना है। हम वो 2006 का जो डाटा था उसी को मल्टीप्लाई कर करके तो अपने स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे हैं। IFCN को अब हमारे वसीम साहब इज प्रोवाइडिंग देम ऑल द इंफॉर्मेशन, बट हम उसको बिल्कुल बताते हैं उनको कि यार हमारे पास डाटा नहीं है, हमारे पास ये 2006 का डाटा है, ये हमारी assumptions हैं और इस हिसाब से ये मिल्क प्रोडक्शन होगी पाकिस्तान में। आई मीन थिंग्स डोंट वर्क लाइक दिस। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो इंसानों की हेल्थ का डाटा नहीं है लोगों के पास, तो ये तो काफी बियॉन्ड है। बट वी डॉक्टर साहब आगे में अभी थैंक यू वेरी मच सर, मैं आपको इंशाल्लाह इन्वॉल्व करूंगा। डॉक्टर सर्वर साहब बैक आ गए, सॉरी जी सम टाइम टेक्नोलॉजी आल्सो डिच यू। सर वेलकम बैक अगेन सर, कंटिन्यू सर, प्रोफेसर डॉक्टर सर्वर साहब सर। सर इनका ऑडियो नहीं चल रहा, वीडियो आ रही है। अच्छा, तो ये ट्रायल आपने किया था पहले, चेक कर लिया था पहले सर से? ये सर लैपटॉप पे चल रहा था, अभी वो उनका लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हुआ, बंद हो गया, और साथ अभी लैपटॉप मोबाइल से ट्राई कर रहे हैं दोबारा। अच्छा ओके, ये हमारे साथ हबीब साहब हैं। ये डॉक्टर गुलाम हबीब साहब हैं या डॉक्टर हबीब इजिप्शियन है, कौन है सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। या अखी, हाउ आर यू? हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। कैफ हालुक? कुल्लु तमाम ज़ैन? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड गुड गुड। So everything, so you are waiting for the Angus, right? यस सर। Yeah, that's good, that's good. So, थैंक यू सर। inshallah we're going to have that steaks, okay? ओके सर, वेरी गुड सर। I think Sarwar Saab is back. I will involve you in the discussion, okay brother? वेलकम सर। ओके सर। Thank you brother. जी, थैंक यू। थैंक यू। thanks brother. I think still we are just getting सर को हमें सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तनवीर भाई हमारे साथ बैठे हैं। तनवीर भाई का माइक ओपन करिएगा जब तक सर ऑनलाइन नहीं होते। तनवीर भाई, क्या नया चल रहा है? हाउ यू बिल्ड अप योर कम्युनिटी एंड द फार्मर एक्सटेंशन, वो जो आपने एक रोल मॉडल दिया था कि यू आर गोइंग टू मेक योर पीपल अवेलेबल ऑन द फॉर्म्स एंड यू विल मेक द ट्रायल्स देयर, हाउ इज थिंग्स मूविंग ऑन सर, एंड हाउ यू आर कंबैटिंग विद दिस COVID-19?
आई थिंक तनवीर भाई का माइक अनम्यूट करिएगा वैन। जी तनवीर भाई। तनवीर भाई आप अपना माइक अनम्यूट करिएगा, आप हमारी तरफ से अनम्यूट हैं। तनवीर भाई आप हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आपको सुन नहीं पा रहे। वैद तनवीर भाई का माइक अनम्यूट है हमारी तरफ से। सर नीचे ऑप्शन होगी सर, एक unmute। ज्वाइन टू ऑडियो, वो उसको जरा काइंडली देख लें। अनम्यूटेड सर, हेडफोन्स लगा रहे हैं तो चल जाएगा उनका। हेडफोन चला रहे हैं, उतार दें। लगा लें सर, अभी लगे हुए नहीं है। यस हाँ सर आप हेडफोन उतार के चेक करें। जी भाई। जी हेलो जी जी सर, अब तनवीर आवाज भाई आ रही बोलें। जी, अब आ रही है आवाज? जी सर अब आ रही सर। जी शहजाद भाई, कोविड की वजह से काफी सारी चीजें हमारी जो है वो स्टॉप हुई हुई हैं, क्योंकि एक्सटेंशन के लिए फील्ड में जाना और फार्मर्स के साथ ऑनलाइन तो पॉसिबल नहीं है। हम्म। तो ये कह लें कि ना हमारा इसमें मार्च 8 को हमारा आखिरी उनके साथ हुआ था। उसके बाद अभी हम हमारे आगे नेक्स्ट प्लान में थे, लेकिन कोविड की वजह से वो चीज़ हमारी स्टॉप हुई हुई है। और मीनवाइल एक्टिविटीज एक्सटेंशन की और भी फार्मर लेवल तक हम अभी कुछ नहीं कर पा रहे। ओके इसमें हम मैं अभी इस डिस्कशन में कुछ एडअप करना चाहूँगा। सर इसमें प्लीज। हारून साहब ने जी बड़ी पॉजिटिव चीज़ें इंडिकेट की हैं। अब वही वो जो 95% का जो इशू है हमारा या मेरा जो ऑब्जेक्टिव था उस टाइम भी जो आपसे डिस्कस हुआ था वो यही था कि इन लोगों को हमने एड्रेस करना है। अदरवाइज इस सेक्टर की डेवलपमेंट गवर्नमेंट के अलावा पॉसिबल नहीं है। जिस तरह पोल्ट्री में आपने देखा है कि गवर्नमेंट ने 2 मीटलेस डेज करके पोल्ट्री को बूस्ट अप करने की कोशिश की, उसकी कंजम्पशन की और आगे काम चला, इंडस्ट्री डेवलप हुई। तो लाइफ स्टॉक को एज ए इंडस्ट्री होने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम कम इस तरह किया जा सकता है कि हम जो ये स्मॉल फार्मर्स हैं इनके उसी तरह यूनियन काउंसिल लेवल पे ग्रुप बना के, इदारा किसान की मैं एग्जांपल देता हूँ, तो वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें जो हैं इनको फैसिलिटेट करके इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। सेकंड, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात हुई कि इशू आ रहा है हमारे पास, वहाँ पे प्रॉब्लम यही आ रहा है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जो रिसर्च के अदारे हैं ये जब से नसीम सादिक साहब गए हैं उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम नहीं हुआ। और उस टाइम भी बहुत सारे हमारे एनिमल जो हैं उनको वहाँ से कल कर दिया गया, तो उसमें ब्रीड इम्प्रूवमेंट या इसके अलावा दूसरी जो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज थी वो वहाँ पे काफ़ी कम हो गई। यूनिवर्सिटी लेवल पे जो काम होता है उसमें थोड़ा सा मैं भी उसमें कह लें कि रिस्पॉन्सिबल बनता हूँ कि यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव सबसे पहले तो ये होता है कि प्रोजेक्ट को रन कर लिया जाए, अपनी पेपर पब्लिकेशन का उसमें आ जाए, उसमें स्टूडेंट के थीसिस की रिसर्च हो जाए, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं, उसकी एप्लीकेशन है, ये एस्पेक्ट्स पहले निगलेक्ट हो रहे थे। लेकिन अभी ये एस्पेक्ट्स जो हैं इन पे ज़्यादा एम्फोसिस है। इवन हमारी यूनिवर्सिटी में तो अब जब ये डिफेंस होता है वहाँ पे यही होता है कि ये आपका जो पीआईडी का काम है या रिसर्च एक्टिविटी आपने की है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। होप तो कि इसमें फ्यूचर में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी और जो काम है वो इस तरह प्लान किया जाएगा कि उसमें वो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फर्स्ट उसमें देखी जाए। अपने दो स्टूडेंट्स को भी मैं इसी तरह पोल्ट्री के रेफरेंस से जब काम करवा रहा हूँ उसमें वो प्रोबायोटिक की प्रोडक्ट की डेवलपमेंट है, एंजाइम की डेवलपमेंट है, फाइटोजेंस की है, तो वो इसी एस्पेक्ट्स में हम ले रहे हैं कि आगे इसकी फार्मर लेवल पे एप्लीकेशन जो है वो हो, तो फिर उसका भी हमें बेनिफिट होगा। अच्छा तनवीर भाई, मैं सॉरी आपकी एक बात काटूंगा। मैंने ना एक अभी आपने देखा होगा कि कोविड के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की हुई कि जब ये एनवायरनमेंट डे मनाया गया तो इसके ऊपर बड़ी बड़ी कंपनीज ने बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे।
I happened to read one article which was written by the food quality and insurance manager from the McDonald. जब वो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसके अंदर एक चीज़ बड़ी वाजे हुई कि उन्होंने 3-4 स्लोगन्स रेज किए हैं जो कि ऑफ कोर्स उनकी पहले भी स्ट्रेटजी का हिस्सा थे, लेकिन अब उन्होंने ज़्यादा रेज किए हैं। और कल क्योंकि हम मोहतरम वाइस चांसलर लाहौर यूनिवर्सिटी के युवास के सर हमारे साथ थे, तो उनके साथ भी हमारी डिस्कशन ये हुई कि उसमें उन्होंने एक जो काम जिसके ऊपर वो फोकस कर रहे हैं वो ये है कि कार्बन फुटप्रिंट्स। और अगर जब मैं अपनी इंडस्ट्री का हुजम देखता हूँ या नंबर्स देखता हूँ, जैसे सर ने भी हमें स्टैट्स बताए, और जब हम एक्सपोर्ट मार्केट की बात करते हैं तो मेरे ख्याल है आने वाले टाइम के अंदर ये जो पैरामीटर्स जो एनिमल के ऊपर इफेक्ट करते हैं, जो कंज्यूमर के ऊपर इफेक्ट करते हैं या इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट करते हैं, इनका अल्टीमेटली कोलैबोरेटिव रोल जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा होना है। और मेरा ख्याल है ये हमारे लिए चैलेंज भी है और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है। और अब अगर आप मैकडोनल्ड या फास्ट फूड सीरीज चेन की अगर सीरीज देखें तो पाकिस्तान में इनकी ग्रोथ 10% प्लस है। तो हम जब ये बाहर की यूनिवर्सिटीज के साथ मिलके ये फूड एंड एग्रीकल्चर बोर्ड्स रिसर्च सेंटर्स बना सकते हैं, तो हम इनको ये आइडियाज पिच क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा वॉल्यूम है नंबर ऑफ हेड्स ऑफ एनिमल का इन पाकिस्तान में। जी शहजाद भाई, इसमें देखें लाइफ स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हमारा बना हुआ है, उसमें हर एक की रिप्रेजेंटेशन भी है। बात वही है वर्किंग की कि वर्किंग उसमें किस तरह कर रहे हैं। इशू हमारा वहीं पे जाके आ जाता है। सब्सिडी देना और ये चीजें करना हमारे इन बोर्ड का काम नहीं होना चाहिए। इनका काम रिसर्च एक्टिविटीज बेस्ड जो है उनको करना चाहिए। हारून भाई ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट इसमें किया था कि हमारे पास डाटा ही 2006 का है, जो सबसे बड़ा हमारे पास अलमिया है। हम अभी मैंने एक स्टूडेंट को रिसर्च करवाई है जिसमें इसका सारी कार्बन फुटप्रिंटिंग और पर्टिकुलरली हमने ग्लिम मॉडल को यूज करके एक पूरा गांव लिया है और उसमें चेक किया है कि कितनी GHG एमिशन जो है वो हो रही है। गुलाम हबीब साहब का भी अभी आपने एक पेपर देखा होगा, उसमें फीड लॉट वाले ग्रुप में वो शेयर भी हुआ था बीफ वाले में, तो उनका भी वो उन्होंने पाकिस्तान के टोटल जितनी लाइफ स्टॉक थी उसकी स्टेटिस्टिक्स का किया। मैं इसे 100% एग्री करता हूँ कि फ्यूचर में हमारी एक्सपोर्ट बेस पे भी कर देने लग जाएगा कि आपके अगर कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है तो वो आपसे कोई प्रोडक्ट नहीं लेने के लिए तैयार होगा। उसमें उनकी रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगी कि आप अपने ये कार्बन फुटप्रिंट कम करें तो फिर आपका मीट या जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो हम एक्सपोर्ट अलाउ करेंगे। इसलिए वो हमें ये सारी चीजें डेफिनेटली ध्यान में रखनी पड़ेंगी। मार्केट को कम्पीट करने के लिए हमें ये देखना जी सर, हम आपको सुन सकते हैं। सर्वर साहब वेलकम सर, हम आपको सुन सकते हैं। अच्छा जी, सुन सकते हैं जी सर, वेलकम सर। जी सर। तनवीर भाई, वी कंटिन्यू गुड टॉपिक जी सर। जी जी ओके जी, थैंक यू जी। मैं सरवर साहब को महल आप ले लें अब ऑनलाइन फिर ताकि सर, वो शुरू सर आप बोल सकते हैं सर, आप बोल सकते हैं सर। ठीक है जी। ये मेरा ये भी ऑन करना है, ये प्रेजेंटेशन इस पे ऑन है। स्क्रीन शेयर उधर जाएगी नहीं यार, ना एक मिनट। शहजाद जी प्रेजेंटेशन शेयर तो आवाज मेरी आ रही है जी? आई विल शेयर सर। ओके, थैंक यू, बिकॉज़ आई हैव टू आवाज लीव, आ रही है? लीव इन बिटवीन। थैंक यू। ओके सर, जी आवाज आ रही है सर आपकी। आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है हमें। हेलो जी आवाज आ रही है सर आपकी जी। हमें। तो उसमें हमारे यहाँ जो कुछ ठीक है जी इश्यूज इन बफलो प्रोडक्शन में थे, तो वो मेनली जो स्लो ग्रोथ रेट था, जिसमें डिले एज एट फर्स्ट काविंग थी, पुअर रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस थी, ब्रीडिंग बिहेवियर था और लो मिल्क यील्ड। मेन काजेस हम पुअर परफॉर्मेंस के देखते हैं हमारे यहाँ आज भी वो इरेगुलर सप्लाई है, एक्सेप्ट जो ऑर्गेनाइज्ड डेयरी फार्मिंग है वहां तो ठीक है साइलेज का इस्तेमाल हो, लेकिन जो हमारा स्मॉल फार्मर है उससे ज्यादा दूध पैदा हो रहा है, वो इसमें इरेगुलर सप्लाई में है।
है, लेकिन मैं ये कहूँ कि ये जो लैंडलेस फार्म हमारा 60% जो लैंडलेस जिनके पास जमीन नहीं है वो जमीन ठेके पे ले देन दे फीड, वो ये साइलेज ही मैं कहता हूँ बड़ा ही फीजिबल है। 2 दफा या 3 दफा ये साल में बना लें, जब उनके पास एक फॉडर फीड जो सरप्लस क्वांटिटी में पड़ी होगी तो उसकी जो लेबर कास्ट भी कम हो जाएगी और उससे उसकी प्रोडक्टिविटी भी एनहांस हो जाएगी। और अगर हम ये देखें कि जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी जी सर सर अब अब आ आवाज रही आ रही। आ रही है। तो हमारे जो फीडिंग सिस्टम है, थोड़ा सा मैं उस पर ये बात करना चाह रहा था कि ये मेनली विलेजेस में वो व्हीट स्ट्रा बेस्ड है और जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आप सबको पता है कि खासी पुअर होती है। और उसमें ये जो प्रोटीन की डिमांड, लो क्वालिटी फॉरेजेस को भी वो फॉरेज को एज ए फॉरेज देखते हैं, ग्रीन है, लेकिन न्यूट्रिशनल क्वालिटीज उनमें नहीं देखी जाती। तो ये एग्रीकल्चर, क्रॉप रेजिड्यू, इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स है। तो एक्सट्रीम वेदर जो है ये भी अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर को लिमिट करता है, जिससे इनकी प्रोडक्टिविटी फर्दर कम हो जाती है। तो अगर हम ये न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर लाइवस्टॉक देखें तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारी डेफिशिएंसी है वो तकरीबन 38% हमारे यहाँ सीपी की डेफिशिएंसी है और 26% जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है और सॉरी एनर्जी की डेफिशिएंसी है। और इसको हम अगर बड़ी आसानी से विद एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जब मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई थी तो 1.4 मिलियन टन ऑफ फीड was being produced by 19 feed manufacturing unit of Pakistan जो कैटल के लिए करते हैं। In addition 0.07 million tons feed supplied by LPRI, BRI, अब एनिमल न्यूट्रिशन सेंटर जो डेरा चाल वो तो तकरीबन बंद हो गया है। The feed is either mash or in pellet form. The feed supply roughly 0.09 million tons of TDN and 0.023 million tons of crude protein. अब डेफिशिएंसी 38 एंड 26% इन प्रोटीन एंड टीडीएन जो है इसको हम कैसे कवर कर सकते हैं। इसमें जो 0.16 और 21.3 मिलियन टन की जो शॉर्टेज है सीपीएन एनर्जी, उसको इट रिक्वायर्स 30 मिलियन टन ऑफ फीड टू फुलफिल द एनर्जी एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट। सो जो ये छोटी छोटी फीड मिल हैं, दे ऑफर्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एट द सेम टाइम the industry, the people who would install those mills will earn profit as well as the mill production would go. Now coming towards the nutrition का क्या issue है? Actually nutrition को जो है वो maintenance of production और reproduction के लिए use की जाती है। जहां organized farming नहीं है, हमारे यहाँ जो unorganized farming है, तो उसमें वेरी क्रिटिकल टाइम होता है जब फीडिंग की हमने वो तवज्जो देनी होती है। एक एक्सपेरिमेंट किया था हमारे भट्टी साहब ने ये बफलो हिफर पे और दूसरे एनिमल्स पे, तो जब देखा था कि जो डेली वेट गेन है ये फॉडर प्लस कंसंट्रेट से ये 780 ग्राम्स आया था और वेट एट फर्स्ट कंसेप्शन उस एनिमल्स का 487 केजी था। सिमिलरली अगर फॉडर पे थोड़ा था तो उसमें ये एक टाइम बढ़ गया था, लेकिन उसका जो वेट एट कंसेप्शन था वो 426 था। अगर थोड़ा सा फॉडर के साथ कंसंट्रेट ऐड कर दिया जाए तो वो ग्रोथ रेट को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। अब पॉसिबिलिटीज क्या है, हाउ वी कैन एनहांस दोस। ये एनहांसिंग ये हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी बड़ा काम किया था। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्निक है जिसमें हम इसको करते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट रिसाइकलिंग है और एफिशिएंट फॉडर को हम कैसे अटेन कर सकते हैं। तो एनहांसिंग द न्यूट्रिशन वर्थ ऑफ अवेलेबल फीड स्टॉक में
यही है कि जो लिग्निफिकेशन उसमें ज्यादा है और फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट कम है, वो सिर्फ एक बल्क पूरा जरूर करती है, लेकिन जो नीडेड रिक्वायरमेंट है टू मीट द चैलेंज ऑफ प्रोडक्शन आर ग्रोथ, वो पूरा नहीं होता। तो इसमें हम फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ये बड़ी ही इफेक्टिव हैं। ये एक इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल पे भी पॉसिबल है, जिससे खातर खा अच्छे रिजल्ट आए थे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो बेनिफिट थे कि 5% यूरिया को हम ट्रीट किया विद 6% एसिडिफाइड कैन मोलेसेस और कॉर्न स्लिप लेकर फॉर 15 डेज, तो उसकी क्रूड प्रोटीन 16% तक चली गई थी। इट वाज रियली रिप्लेसिंग दैट ग्रीन फॉडर एंड ड्राई मैटर इनटेक बढ़ गया, डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ गई एंड मिल्क प्रोडक्शन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग समर 2 to 3 लीटर्स पर बफलो पर डे ये इंक्रीज हुआ था। तो इसके जो बेनिफिट हुए हमारे यहाँ, तो ये हमको ऑलमोस्ट 50% जो रिक्वायरमेंट है कंसंट्रेट की रिड्यूस कर सकते हैं सिर्फ गर्मियों के 3-4 माह में, अगर हम इसको ट्रीट कर दें। और उसके बाद एक कास्ट इफेक्टिव राशन भी बन जाता है। और ये जो ड्यूरिंग जो हमारी स्केर्सिटी पीरियड है, दिसंबर और जनवरी, जून और मई और जून, ये 6 माह बनते हैं, तो ये व्हीट स्ट्रा को हम ट्रीट करके एज सच फीड कर सकते हैं। लेकिन जब ग्रीन फॉडर होता है उस वक्त इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं होती। तो ऑर्गेनिक वेस्ट रिसाइकलिंग, दैट वाज एक एक्सपेरिमेंट शहजाद साहब, बहुत अच्छा था और बहुत ज्यादा प्रोटीन भी हुई थी। हमने ये जो इसका गोबर है उसको ट्रीट किया विद व्हीट स्टार एंड सम यूरिया एंड सम अदर स्टफ, एंड द प्रोटीन वाज ऑलमोस्ट 30%, 25% to 30%, लेकिन ये फार्मर ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब फॉडर का एफिशिएंट यूज ये है कि वैल्यूएशन हमारी फॉडर क्रॉप्स की बहुत कम है। केमिकल और बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स तो हुए हैं केमिकली भी, लेकिन सुपीरियर फॉडर जर्मप्लास्ट वो इंपोर्ट करते हैं और वो बीजते हैं, फार्मर के पास उसका सीड नहीं होता, और फिर हम इंसाइल कर सकते हैं फॉडर्स को, प्रैक्टिस ऑफ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं साहब? जी जी सर, सुन रहे हैं हम। तो इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन फॉर फ्रूटफुल एक्टिविटीज फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूशन की, कि फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट मस्ट बी इक्विप्ड विद द लेटेस्ट फैसिलिटीज, बट अनफॉर्चुनेटली फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारे पास पंजाब में है, वो सरगोदा यूनिवर्सिटी के पास, जहाँ कोई एक एग्रीकल्चर फैकल्टी है, उसके साथ उन्हें कनेक्ट कर रखा था, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और पर्टिकुलरली ये एनिमल हस्बेंड्री जो यहाँ प्रोडक्शन का काम होता है उनके साथ उसकी कोलैबोरेशंस होनी चाहिए। फार्मिंग में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होना चाहिए। एंड फिर जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस फॉडर क्रॉप्स है, ये कभी माजी में जरूर होता था और उसके खातिर अच्छे रिजल्ट भी होते थे, लेकिन आजकल हमने इसको तकरीबन बंद कर दिया है। अब कंजर्वेशन टेक्निक्स माशाल्लाह, अब तो ये जो साइलेज, तो ये तो टॉक ऑफ द डे बन चुका है। ये जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, बिजनेस भी आ गया, लोगों ने खरीदना भी शुरू कर दिया। तो इससे, और थोड़ा सा हे, जब ये सरप्लस होता है बरसीन, उन दिनों में अगर हमारा फार्मर इसको हे को बनाकर रख लेना, तो उससे भी उसको खासा एडवांटेज हो सकता है। तो एग्रो इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स में केमिकल एंड बायोलॉजिकल वैल्यूएशन ये भी है। कॉर्न कॉब्स है हमारे जो इंडस्ट्री बाई प्रोडक्ट्स हैं, और उनको बेकरी बाई प्रोडक्ट्स हैं, खासे ज्यादा होते हैं। अगर उनको हम एनिमल फीड में ले आए तो वो फीड का एक इशू हल हो सकता है। ये यूरिया मोलेसिस मिनरल चल रहे हैं, ब्लॉक यहाँ बन भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। बेकरी, सिट्रस इंडस्ट्री, बनाना बाई प्रोडक्ट्स, ये अभी तक नहीं हो रहे। तो क्रिटिकल न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट जो है, तो ये हमारी काफ हेफर है, ड्राई काउ है, क्लोजअप काउ है, लैक्टेटिंग काउ। तो लैक्टेटिंग के बारे में मैं ये बात करूंगा कि एक्चुअली जो हमारा फार्मर है उसे सिर्फ 2 से 3 माह जब बच्चा दे देती है उस वक्त न्यूट्रिशन बैलेंस की जरूरत है, और जब वो बच्चा देने से पहले 2 माह, ये 4-5 माह उसको अगर बैलेंस न्यूट्रिशन मिल जाती है, उसके बाद उसको ज्यादा न्यूट्रिशन पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जानवर की इनटेक बहुत बेहतर हो जाती है। और जब वो इनटेक बेहतर हो जाती है तो उसके बाद वो अपनी ऑल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट उनसे बखूबी वो पूरी कर लेता है। इसी तरह एक ये फ्लैशिंग राशन होता है गोट में, जब ब्रीडिंग सीजन आता है उससे पहले 15-20 दिन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, अगर आप फीड कर देते हैं तो ये आपके ट्विन जो उनकी तादाद खासी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और वही वो
एक राशन उनको उस वक्त देना होता है, उसके बाद वो ग्रेज कर लेते हैं या वो कंसंट्रेट फीड कर देते हैं, तो उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट तकरीबन पूरी होती रहती है। अब लैक्टेटिंग एनिमल में अगर आप देखेंगे तो इनका जो क्या है, तो सबसे कम जो रिक्वायरमेंट है वो ड्राई एनिमल की है, और उसके बाद दरमियान में क्लोज अप ड्राई एनिमल जो बिल्कुल बच्चा देने के करीब होता है लास्ट ट्राइमेस्टर में, और हाईएस्ट हमारी जो लैक्टेटिंग डेयरी एनिमल की होती है, और वो भी उस वक्त है जब पहले 90 डेज में। जो ही ड्राई मैटर इनटेक वो अटेन करता है, उसके बाद आपको ये न्यूट्रिशन की निटी-ग्रिटी में बेशक न जाए, वो इनटेक ही इतनी हो जाती है जिससे उसकी मिल्क यील्ड अफेक्ट नहीं होती। आगे क्वालिटी मिल्क इज डिफिकल्ट टू फाइंड नाउअडेज। तो बफलो मिल्क, जैसे मैंने पहले कहा था कि A2 गुड मिल्क है, बफलो मजरीला भी चीज बड़ी डेलिकेसी है, और डिफरेंट जो प्रोडक्शन सिस्टम है हमारे फार्मर्स के लिए, जो स्मॉल होल्डर्स है उनके लिए जो प्रोडक्शन सिस्टम है, उनके बारे में कोई ट्रेनिंग हो जाएगी। अगर ट्रेनिंग हो जाती है तो डेफिनेटली फार्मर उससे लर्न करता है। काफी मॉर्टेलिटी बड़ी कम हो गई। इसमें मैं एक बात करना चाहूंगा कि हमारा इटली में एक टॉक थी, वहाँ ये हमारे सारे साइंटिस्ट पाकिस्तान के भी सारी दुनिया के इकट्ठे थे, बफलो इंटरनेशनल की कांग्रेस थी। तो वहाँ S.K. राजन जो हमारे इंडियन एक प्रोफेसर थे, उन्होंने ये एक स्लाटर हाउस भी स्टार्ट किया था इंडिया में। तो उन्होंने कहा जी हमने मॉर्टेलिटी जो बफलो का में 0 कर दी ना, मुझे ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं था, ना मैं मानता था। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया जी आप मुझे बताएं ये कैसे आपने 0 कर दी। तो उन्होंने कहा कि मैं ये टॉक के बाद ना हम बैठते हैं खाने पे तो बताऊंगा। शहजाद साहब, वो जो हमारा बीफ की मार्केटिंग का वो भी वंडरफुल है। अगर हम S.K. राजन का मॉडल ले लें, उन्होंने क्या किया, फार्मर आइडेंटिफाई किए, जो हमारे एक्सपोर्टर हैं बीफ के, उनके साथ उन्होंने MOU साइन किया। तो उन्होंने कहा कि ये 200 kg का होगा तो हम इस रेट पे उठा लेंगे, 400 kg का होगा तो हम इस रेट पे उठा लेंगे, 300 kg का हुआ तो हम इस रेट पे उठा लेंगे। जब फार्मर ने वो कैलकुलेट किया तो डेफिनेटली वो काम उनका चल पड़ा और मॉर्टेलिटी तकरीबन 0 कर दी। अब मार्केटिंग जो है ना, ये मार्केटिंग सबसे बड़ा इश्यू है। मैं शुरू से काफी सालों से ये कहता आ रहा हूँ, गवर्नमेंट से भी बात की, PARC से भी, सबसे भी, कि अनलेस यू इम्प्रूव द मार्केट फॉर आवर लाइवस्टॉक, फॉर बीफ, फॉर दिस हमारी गोट, शीप, मिल्क, उस वक्त तक हम आगे नहीं जाते। ये बीफ प्रोडक्शन के बेशुमार प्रोजेक्ट शुरू किए, मैंने भी खुद 3-4 साल इस पे काम किया। उसके बाद ये PARC ने शुरू की है। आजकल भी सेब काओ, बफलो काओ का एक स्कीम चल रही है जिसमें वो 6,500 रुपया देते हैं। अगर वो 3 माह तक उसका सेहतमंद भी रहता है और 400 ग्राम गेन करता है, अगर वो 700 ग्राम पे चल जाता है तो फिर वो उसको देते हैं। लेकिन जितने ये प्रोजेक्ट चले, जो ही ये सब्सिडी या जो हेल्प देते हैं, जब देनी बंद की तो उसी वक्त ये बंद हो गए, जिसकी मेन रीजन ये हमारे टोबे में पूरा प्रोजेक्ट था। तो मैंने इसका सर्वे किया, तो जब मैंने पूछा, वो कहता कि जब हमारे एनिमल्स तैयार हो जाते हैं हमें उस वक्त प्रॉफिट होता है, लेकिन मार्केट में कोई पैसे नहीं होते। हम सिर्फ कुर्बानी के नजदीक अगर जाकर करें तो कुर्बानी में हमें सही रेट मिल सकता है। तो वो एक छोटा सा सेगमेंट डेवलप हो रहा है। इसके लिए अब तो गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, और जब तक ये मार्केट अवेलेबिलिटी, जैसे मैं ये कहता हूँ कि ये ब्रायलर है, ये बर्ड्स है, ये पोल्ट्री है, अगर ये मार्केट ना होती, आज मेरे पास 10,000, 50,000, 1 मिलियन ब्रायलर है, तो सुबह मुझे पता होता है इस रेट पे मैंने उसे सेल करना है। ये जो एनिमल बड़े होते हैं इनकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट ही बहुत ज्यादा होती है। अगर ये 10 दिन खड़े रह गए, ना बिके, तो ये प्रॉफिट क्या, ये तो मालिक को भी खा जाते हैं। तो इसलिए ये मार्केटिंग जो हमारा सबसे बड़ा इश्यू है, उसको हमें सॉल्व करना है फॉर द प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइवस्टॉक। अब एक थोड़ा सा हेल्थ पे बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। ये एक रिसर्च हुई थी जिसमें जो HS की बीमारी से पंजाब में एनुअली 2.17 बिलियन लॉस होता है। हमारे पास ना उतनी डोजेस हैं, ना उनकी इफेक्टिविटी है। जहाँ हो जाता है वहां भी ये हो जाता है।
और इसी तरह FMD, ये 2 डिजीज का मैंने लिया था, इनका 6 बिलियन रुपीस लॉस है पाकिस्तान में। ये रिसर्च बेस्ड स्टडी है, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हेल्थ डिपार्टमेंट वालों ने की थी। अब देखें कि कितना बड़ा लॉस है। अगर हम ये इनको सिर्फ वैक्सीन ही प्रोवाइड कर दें तो मेरा ख्याल है कि ये इतना बड़ा लॉस, हमें किसी तरफ से किसी किस्म की कोई हेल्प, कोई इमदाद लेने की जरूरत ही नहीं रहती। अब ये रिप्रोडक्शन पे अगर हम थोड़ा सा जाएं तो इसमें भी ये बफलो और काऊ का फर्क है, लेकिन काविंग इंटरवल हमारा जो बढ़ता है वो उसमें कई इशू आते हैं। तो एक इसमें एक लेस कंसेप्शन रेट बाय AI भी है। AI कवरेज हमारा 20-25% से ऊपर नहीं जा रहा, और लैक ऑफ वेल ट्रेन्ड AITs हैं, जिसकी वजह से ये पॉपुलैरिटी AI की कम होती है। और फिर उसकी एक सीमन क्वालिटी वो अब मुख्तलिफ लोगों ने शुरू कर लिया है, लेकिन कोई प्रूवन बुल नहीं है। वो अपने तौर पे अपना बेचते जा रहे हैं, और एक टाइम आएगा तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये मसला बनेगा। ये मॉडर्न मार्केट्स ने, मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट्स हमारा सबसे बड़ा इशू है। तो अवेयरनेस अमंग फार्मर्स, एनिमल प्रोडक्शन, मैन पावर में एनहांसिंग अवेयरनेस अबाउट रिसर्च फाइंडिंग्स होनी चाहिए। उसकी पॉपुलैरिटी जो हमारे साइलेज और हे की, इंक्रीज लैंड फॉर फॉडर प्रोडक्शन है, इंक्रीजिंग सीड अवेलेबिलिटी ऑफ हाई यील्डिंग फॉडर्स है, trained manpower in the field of animal production and marketing need to be current marketing structure of livestock where farmer can sell or buy the animal without any type of exploitations. So एक तो में lack of awareness भी है, दूसरा है कि animal production manpower जो ना, low number of production graduates, ये एक और issue है, इसमें आज बात नहीं करेंगे। जब हमने we have to enhance the production, so we have to have more and more production graduates so that the productivity of livestock could be really enhanced. और फिर मार्केटिंग में जो प्राइस है, आप लोग सबको पता है कि लो प्राइस है मिल्क की, वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम है, तो वो फार्मर बेचारे को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और जब ये हो जाता है कि जब हाई प्राइस ऑफ लैक्टेटिंग डेयरी एनिमल्स, अब ये देख लें कि डेयरी एनिमल्स बड़ा सस्ता हुआ करता था, अब ये बफलो लेनी हो तो 1.5 लाख 2 लाख की आती है। और अब ये जो एनिमल, एक और इश्यू है, जो कराची जाते हैं वहां दोबारा रिसाइकल होने के लिए नहीं आते, वहां काफी कोई 80% तक वहीं स्लाटर हो जाते हैं। तो इसका भी हमें सोचना है, अदरवाइज ये प्राइसेस बहुत ऊपर चल जाए तो ये फार्मर बेचारा, अगर खुदा ना खास्ता उसकी बफलो मर गई या कुछ हो गया तो दोबारा वो खरीदने के काबिल नहीं होता। अब हम शीप के बारे में कर लेते हैं कि ये भी एक अच्छा, शीप एंड गोट एक अच्छा बिजनेस है, अच्छी फार्मिंग इसमें की जा सकती है, थोड़ा इसमें पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन थोड़ा सा इसमें न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी गाइडेंस अगर फार्मर को मिल जाती है तो इससे वो हमारा तकरीबन सारा जो है ना कि ये एक सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग में कन्वर्ट हो सकता है। सिमिलरली ये गोट, मैंने पहले भी कहा था कि ये इसका जो मिल्क है ये मेडिसिनल वैल्यू रखता है। अगर हम इसको प्रोसेस, कोई कैपेसिटी बिल्डिंग फार्मर्स की हो जाती है या गवर्नमेंट हेल्प कर देती है तो ये मिल्क हर बंदा खरीदने के लिए तैयार होगा। इसी तरह ये अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपोर्ट्स के लिए, सऊदी अरब को हर साल तकरीबन 1820 मिलियन शीप, इस साल के अलावा मैं कह रहा हूँ, वो गोट उनको पूरे मुल्क में जरूरत होती थी, लेकिन FMD हमारे लिए एक इश्यू बना हुआ है। तो अब गोट मिल्क में इसकी इसी पैकिंग हो जाती है। बाहर के मुल्कों में, इंडोनेशिया में मैंने देखी है, बिल्कुल पैक्ड गोट मिल्क बिक रहा है। अगर यहाँ भी ये हो जाए तो हमारे तो वो बेचारे, अगर गोट मिल्क अगर मिक्स भी कर दें तो वो पहले दूध की भी कीमत कम हो जाती है। ये लैक ऑफ अवेयरनेस है। और AI भी गोट में शुरू कर दी थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर ये हम इसको फर्दर एक्सपर्टाइट कर सकते हैं। तो उसके बाद ये कैमल भी आजकल खासा डिस्कस हो रहा है, इसके दूध की भी मेडिसिन वैल्यू है। पैकिंग में किसी मुल्कों में ये बिक भी रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करके तो इसको सिर्फ वो मेडिसिन वैल्यू के हिसाब से अगर दूध को मार्केट करें तो दिस अगेन विल बी हेल्पफुल फॉर आवर फार्मर। सो बिफोर आई finish my
So I would like to give some policy guidelines that livestock should get its due share as separate visible sector and must not be a hidden part in agriculture. Animal production sector needs to be focused, which has not been focused when PARC was erected and the animal sciences component is there. It's a really rudimentary type of animal components. When the people talk about agriculture, they say crop sciences only. If there is any subsidy, any help, it is for the crop sciences, but the livestock sector is completely ignored. Animal science, animal production, education should be started in major agriculture universities. A separate council would be formed for regulation of these production degrees. Efforts to develop and conserve indigenous breeds must be a priority area for research and development. काफी हमारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं हुई. अगर हम डॉक्यूमेंटेशन कर लें, हमें पता चल जाए, तो डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम we could really bring improvement in productivity. And drain of best germ plants. Buffalo पंजाब से कराची जा रही है और वहां स्लॉटर हो रही है और उसको भी सेव करना है. अब स्मगलिंग ऑफ लाइवस्टॉक टू नेबरिंग कंट्रीज बी कंट्रोल्ड. Regulatory body to control indiscriminate import and local product of semen must be put in place. तो क्वालिटी वैक्सीनेशन हमें करना चाहिए. अब भी हम वो अगर वैक्सीन है पैटी डिश और ये फ्लॉस वगैरह में बनाते हैं, तो ये तो अब तो बाहर की दुनिया में ये मशीनें बन गई. हमें 1 मिलियन डोज चाहिए, वो कहते जी कल आकर ले जाना. तो ये इस हिसाब से हमारे यहाँ बिल्कुल कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें ये करे. लास्ट पे फिर मैं कहूँगा मार्केट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर मार्केट दे दी जाए तो हमारे फार्मर को किसी किस्म की कोई हेल्प की भी जरूरत नहीं है. तो एंड पे जो बॉटम लाइन है, while there are a lot of constraints of livestock development in Pakistan, opportunities are countless. There are lot many opportunities, and अब हमें इनसे opportunity से ये हमें फायदा उठाना है. तो with this, शहजाद साहब, thank you very much. ये मैं कहना चाह रहा था. अब कोई क्वेश्चन है तो most welcome. Sir, thank you very much. Of course, because of technology, we could not get what we want, but I'm very happy कि आपने माशाल्लाह बड़ा comprehensive किस्म का और very subjective material share किया, जो कि very useful भी है. और जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इंशाल्लाह इसके हम minutes of the meeting बना के आप लोगों से share करेंगे. और जिन लोगों को अगर presentation की copies भी चाहिए, वो भी हम share करेंगे. I'm amazed with the last sentence जो सर आपने बोला कि this Pakistan especially is a land of opportunities, और there are countless opportunity especially in हमारे sector के अंदर. और इस सेक्टर को एज अ सेक्टर आइडेंटिफाई करने की और रिकग्नाइज करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है. और जैसे कि आपने बहुत सी बातों के बारे में बताया, उनके साथ साथ मिलके अगर हम तमाम लोग मार्केटिंग एंड को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि वी ऑल नो दिस थिंग कि वी शुड नाउ वर्क ऑन द रिवर्स इंजीनियरिंग. व्हाट आई मीन ओवर हियर इज के हमें मार्केट के हिसाब से पीछे अपनी प्रोडक्शन लाइन और बाकी तमाम चीज़ों को अलाइन करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन जब तक आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एफिशिएंसी जो है वो रिकग्नाइज नहीं होती इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, देन इट विल बिकम अ क्वेश्चन मार्क. और जो कि आपसे पहले जो डिस्कस कर रहे थे हम हारून लोधी साहब से भी और तनवीर भाई से भी, कि जो हमारा 95% सेगमेंट है, जो रियल चंक ऑफ बिजनेस है, उनको भी हमें मॉडर्नाइज्ड तरीकों पे लेके आना है. एंड ऑफ कोर्स नाउ द टाइम इज एवरीवन इज वेल अवेयर अबाउट के प्रॉब्लम्स क्या, उन पे काम हो रहे हैं. इंशाल्लाह हम उनके ऊपर मिलके कोशिश भी करेंगे. हमारे साथ पार्टिसिपेंट मौजूद हैं. मैं उबैद से रिक्वेस्ट करूंगा कि उबैद काइंडली आप सबके माइक ओपन कर दें. मेरा ख्याल है इसमें हमारे साथ यहाँ पे सीनियर लोगों में अफजल साहब मौजूद हैं. सबसे पहले मैं अफजल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने कमेंट और क्वेश्चन अगर करना चाहें तो ही इज़ मोस्ट वेलकम. डॉक्टर अफजल साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरे ख्याल में जो अहम बात है ना जी, वो ज़्यादातर तो डॉक्टर साहब ने देखें. आप पहले तो हमारे जो नंबर्स है ना वो गलत है. सॉरी, हमने बहुत सारे अब पिछले तकरीबन 2 सालों में बहावलपुर डिवीजन पे खासा ज़्यादा काम किया है, वैक्सीनेशन करते रहे. वी कैन ऑलमोस्ट गारंटी कि कम से कम कैटल एंड बफलो जो पंजाब गवर्नमेंट का डेटा है, जो सेंसस था, वो करीब तरीन है. ठीक है जी.
तो दैट शुड बी सो। अगर वो डेटा लेंगे तो 2006 से बाद में प्रैक्टिकली आपकी यानी एक किस्म की सैचुरेशन हो गई है और जानवर बढ़ नहीं रहे, वो वही है नंबर्स के हिसाब से। दूसरी आई थिंक ये जो 1, 2, 3 वाले कम से कम जानवरों वाला है ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्टेटस बदल रहा है। बहावलपुर डिवीजन में आई कैन टेल यू के जी एवरेज हर्ड साइज इस वक्त 10+ है, 10 है, 11 है, 12 है, ठीक है जी। एवरेज हर्ड साइज बहावलपुर डिवीजन में सारे तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से जो 100 से ज्यादा जिनके पास जानवर हैं वो भी साइजेबल नंबर्स हैं। सो बेसिकली अगर ब्रीडर्स ये चाहें तो उन लोगों के साथ काम करना कोई इतना लंबा चौड़ा मसला है नहीं, ठीक है जी। पहले वो कहते थे ये एक बंदे के साथ, और ये अगर हम यानी टारगेट कर लें कि जी हमने 100 जानवर वाले के साथ जिसके पास लोकल कैटल है या लोकल बफलो है उसके साथ ब्रीडिंग का सारा काम करना, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं। आई थिंक जो एक और अहम बात हमें याद रखनी चाहिए, प्रोबेबली हमें 2, 3, 4 ब्रीड्स को के अलावा जितनी बाकी सारी ब्रीड्स है ना, उनको मोर ऑफ ए कंजर्वेशन की तरफ जाना चाहिए। वो ब्रीड्स शायद जिंदगी में सरवाइव नहीं कर पाएंगी इकोनॉमिकली, और इन्वेस्टमेंट उस पर इतनी ज़्यादा होगी कि वो पॉसिबल नहीं होगा। सो इसलिए बेस्ट इज के जी आप साहिवाल ले लें, आपने उधर से रेड सिंधी ले लें, थरी ले लें, ये इधर से क्या आप कहते हैं चोलस्तानी ले लें, ठीक है जी, और एक आध और ब्रीड ले लें। ये जो यानी हैं ये वो ब्रीड्स हैं जिनमें कोई पोटेंशियल है 2-1 मिल्क में, बाकी बीफ में। The rest of the animals, I think we need to conserve them. बेशक कोई ज़रूरी नहीं सरकार में ही कंजर्व हो, फार्मर्स को इंसेंटिव दे के उनको कंजर्व करवा सकती है गवर्नमेंट, और वो भी काम किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन असल बात यही है कि जब तक हम पॉलिसी शिफ्ट नहीं लाते कि जी ये जो क्या कहते हैं मिल्क प्राइस कंट्रोल है जी, बीफ प्राइस कंट्रोल, यार ये इस कंट्रोल से जब तक बाहर नहीं निकलते लोग, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आ रहा लोगों को, इकोनॉमिक्स उनकी ठीक नहीं होती, ठीक है। प्लस आई थिंक अल्टीमेटली समहाउ और द अदर जितने भी छोटे फार्मर हैं ना, वी विल हैव टू गो टुवर्ड्स कोऑपरेटिव्स और टुगेदर, यानी डिसीजंस व्हिच आर टेकन टुगेदर। चाइनीज एक मॉडल है जो उन्होंने एक अच्छा अडॉप्ट किया था, लेकिन वो बेसिकली जानवर दे के लोगों को, तो वो मिल्किंग मशीन पे 1 गांव में 2 गांव 3 गांव में दरमियान में मिल्किंग मशीन लगा लेते हैं, अब सारे जानवर यानी चवाई के वक्त वहां ले आते हैं। सो दैट कुड बी अनदर पॉसिबिलिटी। यानी हमें कोई ना कोई मॉडल डिफरेंट करना पड़े। रूटीन की चीज़ें आई थिंक बहुत हो गई, वो जो है गवर्नमेंट हैज़ टू रीथिंक ऑनेस्टली वेयर दे नीड टू इन्वेस्ट। और बाकी जो सिनेरियो है ना जी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा इनकरेज करें। जितना प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करेंगे उतनी तरक्की क्विकर होगी और जल्दी होगी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर ये फील करता है कि शायद प्राइवेट सेक्टर हमारा कॉम्पिटिटिव है, विच इज एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। सो आई थिंक जो आपका मेंटल सेटअप है गवर्नेंस का, वो चेंज होने की जरूरत है इन दैट सेंस। सो दैट इज हाउ रियली इज। बट एक चीज मेरी जाती राय है कि जी अगले 10 से 15 सालों में हम देखेंगे कि ये बिल्कुल बहुत छोटे जो फार्मर है ना जी, वो शायद अपने घर के लिए रह जाएंगे, लेकिन वो मार्केट में उनका शेयर कम हो जाएगा। ओवर। I think thank you very much, sir. I think this is something a very honest comment कि we need to change the mental जो है ना thought process, but I think it will change, and as you hopefully mentioned कि in coming years of time dynamics change होंगी। तनवीर भाई, आपका क्वेश्चन, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्रोफेसर डॉक्टर सरवर साहब मौजूद हैं, you can ask them please। जी
मैं सरवर साहब के एक पॉइंट से, क्योंकि लास्ट में डॉक्टर साहब ने यही कहा था कि मार्केटिंग का अफजल साहब ने बड़ा अच्छा इंडिकेट किया कि अब मार्केट इतनी कम्पिटिटिव हो गई है, जब तक हमारी एफिशिएंसी नहीं होगी तो मार्केट हम अटेन नहीं कर सकेंगे। मार्केट को कैप्चर करने के लिए हमारा प्रॉब्लम यही आ रहा है कि हमारे पास किसी भी ब्रीड का न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमारे पास उसकी वो रिक्वायरमेंट और उसके बाद उसकी फीड एफिशिएंसी जो है ये कहीं पे भी रिपोर्टेड या अवेलेबल नहीं है। अब प्रॉब्लम यही आता है कि हिट एंड ट्रायल या ट्रायल एंड एरर से फीडिंग हो रही है, कुछ जगह पे काम हुआ भी है लेकिन वो कहीं पे भी उसको रिकंसिलिएशन उसकी नहीं हुई। अब प्रॉब्लम ये आता है कि अपने अपने लेवल पे हर कोई फीड करता है, जब वो मार्केट के लिए बैठते हैं तो एनिमल की जो रेट ऑफ रिटर्न वहां से होता है वो उतना नहीं होता कि एनिमल मार्केट हो सके, जिसकी वजह से फार्मर को लॉस होता है। इसका कंपैरिजन हम अगर इंपोर्टेड ब्रीड से करते हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ बहुत सारी ब्रीड जो हैं पर्टिकुलरली प्राइवेट फार्म्स, वो सारे उसमें इंपोर्ट में लगे हुए हैं। रीजन बीइंग यही है कि उनकी पर एनिमल प्रोडक्टिविटी 25 से 30 की अगर रेंज में आती है तो वो एफिशिएंट प्रोड्यूसर हैं और उससे उसकी इकोनॉमिक गेन हो जाता है। मिल्क की हमारे यहाँ थ्रू आउट द ईयर डिमांड है, एक्सेप्ट ये कुछ जो भी फ्यू डेज गुजरे हैं इसमें प्रॉब्लम हुआ है। तो अगर फार्मर को रेट ऑफ रिटर्न अकॉर्डिंग टू उसकी इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। बीफ के बारे में भी हमारा यही इशू है कि हमारी अपनी जो ब्रीड्स हैं उनकी वो एफिशिएंसी एक्सपेरिमेंटल लेवल पे तो हुई है या कुछ प्राइवेट फार्म्स पे भी हुई है, लेकिन वो कहीं पे भी उसको पॉलिसी में नहीं लाया गया और ना कहीं पे उसकी कोई गाइडलाइंस जो है वो इस्टेब्लिश की गई हैं कि इन एनिमल्स को हमने कैसे रियर करना है, पर्टिकुलरली फ्रॉम न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका इम्पैक्ट यही आता है कि फार्मर जब उसको रियर करता है उसको ये नहीं पता होता कि एट द एंड ऑफ डे पे जाके मेरे पास वेट कितना आएगा और वेट के बाद हमें मार्केट से प्राइस कितनी मिलेगी। प्राइवेट स्लॉटर हाउस हमारे यहाँ अवेलेबल है, वो लेने के लिए तैयार है, एक्सपोर्ट भी हो सकता है, लेकिन इशू वही आ जाता है कि स्टार्ट में हमारी इकोनॉमिक एफिशिएंसी वो नहीं। दूसरे नंबर पे बात हो रही थी इससे पहले वो कार्बन फुटप्रिंट की। तो ये बफलो में हमारे यहाँ ये इशू आता है कि पुअर क्वालिटी रफेज जिससे उसका कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है। अभी अब गुलाम हबीब साहब का भी पेपर देखें, उसमें भी कार्बन फुटप्रिंटिंग जो है वो हमारे यहाँ उसमें इशू आ रहा है कि GHG गैसेस का एमिशन ज्यादा है। हमें उस मामले को भी एड्रेस करना है ताकि फ्यूचर में अगर हमारा ये सेक्टर डेवलप होता है तो हम उसमें एक्सपोर्ट के मामले में हमें कहीं कार्बन फुटप्रिंट की वजह से हमें उसमें लॉस में ना जाना। थर्ड, लाइवस्टॉक सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए ये अच्छा आइडिया है, चाइना वाला है या इंडिया का हमारे पास कोऑपरेटिव मॉडल है, इवन अपना इदारा किसान का जिसमें हला मिल्क प्रोडक्शन है, ये मॉडल इनको अगर रेप्लिकेट किया जा सकता है और इसमें पॉलिसी लेवल पे कुछ न्यू गाइडलाइंस ला के इनको बेटर किया जा सकता है। तो ये दो तीन चीजें थी जो मैं इसमें शेयर करना चाह रहा था, ओवरऑल हमारा जो लाइवस्टॉक का सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट। बाकी छोटा फार्मर डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होगा, जिस तरह पोल्ट्री में देखा है कि अब स्मॉल फार्मर जो है वो उनका वहाँ पे उतना स्कोप नहीं है या उतना उनको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो उस सेक्टर से आउट हो। तो सिमिलरली लाइवस्टॉक में भी ये प्रॉब्लम आएगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो कमर्शियल सेक्टर है वहाँ पे जो एनिमल इंपोर्ट हो रहे हैं वो हमारा एक बहुत बड़ा उसमें इशू है कि एनिमल इंपोर्ट होते हैं उसके बाद आगे वो 2-3 लैक्टेशन के बाद वो आगे बीफ में चले जाते हैं। तो हमारी अपनी ब्रीड्स जो हैं वो उसका सीड स्टॉक कहीं पे अवेलेबल नहीं है कि फार्मर उसको परचेज कर सके, कहीं पे उसकी ऐसी नंबर इतना अप्रिशिएबल नंबर अवेलेबल नहीं है अच्छे एनिमल्स का कि जो मार्केट में अवेलेबल हों और उनको परचेज किया जा सके। तो इसमें भी हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है कि लाइवस्टॉक फार्म गवर्नमेंट के जो हैं वहाँ पे अगर हमारे ये एनिमल जो है उनको रियर किया जाए और आगे सीड स्टॉक जो है उसको सेल किया जाए। थैंक यू। ये एक अच्छा, इसमें एक कमर्शलाइज एक्टिविटी भी हो सकती है कि कमर्शियल सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर जो है वो अगर सीड स्टॉक के छोटे फार्म्स डेवलप कर ले और आगे फ्रेंचाइज दे सकते हैं, जिस तरह हमारे दूसरे सेक्टर्स में फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट है कि अगर वो अच्छी ब्रीड्स वहाँ पे रियर हो और फ्रेंचाइज के तौर पे जो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उनसे वो एनिमल लेके उसको रियर करे और वो फ्रेंचाइज उससे अगर प्रोडक्ट परचेज कर लें उनसे वापस जो आगे मिल्क है या मीट है, तो ये एक अच्छा एक न्यू बिजनेस सेटअप बन सकता है। थैंक यू डॉक्टर तनवीर। आई थिंक आपने बड़ा रेलेवेंट चीज़ें बताई। ऑफ कोर्स जो यूनिट मॉडल है वो
चेंज होगा लाइफ स्टॉक के अंदर भी। मेरा डॉक्टर सरवर साहब सर आपसे एक क्वेश्चन है कि ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइफ स्टॉक में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन स्पेसिफिक डेयरी, बीफ, या हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एक्वा सेक्टर भी बड़ा इमर्जिंग है। तो आप एक्वा सेक्टर के बारे में सर अगर कोई कमेंट करना चाहें या कुछ बताना चाहें सुनने वालों को, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी इमर्जिंग मार्केट है जो कि प्रोबेबली निगलेक्टेड थी पिछले के कोई सालों से। हाँ जी, ये अब यकीनन एक इमर्जिंग मार्केट है और इसमें पोटेंशियल भी है। और इसको फिर जब हमारे वो फार्मर का है, क्योंकि अगर मैं DI खां में 3-4 साल रहा, उधर ये फार्मिंग खासी ज्यादा है। जब फिर वो मार्केट की बात आती है तो फिर उनको ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो उन्हें लाहौर आकर ये मार्केट करना पड़ता है, वहाँ कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। तो यही चीजें जो हमारे यहाँ हैं, इनको अगर हम ये पब्लिक सेक्टर जब तक पार्टिसिपेट नहीं करता, डॉक्टर अफजल साहब के साथ भी मेरी खासी मार्केट में हुई थी, तो ये हमारा फार्मर ये रियर तो कर लेगा इंशाल्लाह ताला, वो आएगा भी, प्रोडक्ट भी वो क्वालिटी का लेकर आएगा। आगे जाकर जब वो उसका मार्केट का इशू है ना, वो सॉल्व करना बड़ा ही जरूरी है। जैसे तनवीर साहब ने कहा कंपेटिटिव मार्केट है, ये इट विल बिकम कंपेटिटिव, लेकिन जो हमारी लोकल इंडिजिनस मार्केट है, इसमें तो हमारा प्रोडक्ट, जैसे अब ये मटन है, इसके लिए क्या था कि मटन की प्राइस सबसे ज्यादा है, जबकि बीफ की क्वालिटी है। अब दूसरी दुनिया में देखो तो बीफ खासा महंगा है, और ये जो बीफ करते हैं इसकी मार्केट के लिए भी कोई ना कोई अगर सपोर्ट हो जाती है तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही इमर्जिंग सेक्टर है, और होपफुली इंशाल्लाह ताला ये एक अच्छा सेक्टर होगा हमें प्रोटीन और हमें मीट देने का। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा आपसे सर और है, माशाल्लाह आप न्यूट्रिशन के गुरु हैं, तनवीर भाई भी बैठे हैं और भी हमारे बहुत से लोग जो सुन रहे हैं देख रहे हैं। एक्वा की इमर्जिंग सेक्टर में हमारे पास कोई एक्वा न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, और ना ही हमारी यूनिवर्सिटी में कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिशन के ऊपर कोई एक्वा न्यूट्रिशन के ऊपर कोई एमफिल या ऐसे कोई स्पेसिफिक कोर्स अवेलेबल नहीं है। क्योंकि आप लोग पॉलिसी मेकर्स भी हैं, आपकी आवाज़ सुनी जाती है, तो क्या आप रिकमेंड नहीं करेंगे जो अगर रनिंग यूनिवर्सिटीज हैं, ये एक इमर्जिंग मार्केट है जहाँ पे पेट न्यूट्रिशन को और एक्वा न्यूट्रिशन को भी प्रॉपर एक प्लेस दी जाए और इसके अंदर लोगों को ट्रेन किया जाए? जी बिल्कुल, आई 100% एग्री विद यू कि एक्वा न्यूट्रिशन पे और पेट न्यूट्रिशन पे बेकायदा काम होना चाहिए, ग्रेजुएट्स होने चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। ये इस वक्त अब नीड है। एक दफा मैं ये GHQ में बैठा हुआ था, तो वो काफी ज्यादा पेट फूड लेते हैं, तो हमारे यहाँ तो पेट फूड का उस तरफ वो है ही नहीं, ऐसा कोई एक्सपर्ट्स नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग तो लोग कर रहे हैं, लेकिन ये यकीनन यूनिवर्सिटीज में होना चाहिए। तो बिल्कुल मैं रिकमेंड करता हूँ इंशाल्लाह ताला, जहाँ जहाँ मेरा तल्लक है, डॉक्टर अफजल साहब का है, तनवीर है, तो ये हमें ये डिसिप्लिन शुरू करने चाहिए। बिल्कुल सही। I think जी we have now running time, so we just ask one question from Salman, Dr. Salman, क्योंकि he's साउथ पंजाब में ऑन फॉर्म पे काम कर रहे हैं। अगर सलमान आप प्रोफेसर डॉक्टर सरवर साहब से कोई क्वेश्चन पूछना चाहें या कोई कमेंट करना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर थैंक यू सो मच। सर ने बड़ी डिटेल से हमें बैकग्राउंड सारा दिया लाइफ स्टॉक का, कि उसके नंबरिंग क्या है और क्या क्या चैलेंजेस है और हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। मेरा सर से एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, बीइंग वर्किंग इन अ डेयरी साइड स्पेसिफिकली न्यूट्रिशन में, और जैसे डॉक्टर तनवीर ने बात की कि हम एनिमल इंपोर्ट हो रहे हैं, तो मेरी ज़्यादा फोकस और जो न्यूट्रिशन में सपोर्ट चल रही है उन एनिमल्स के साथ है जिनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है और उनकी एफिशिएंसी अच्छी है। अभी सर डिस्कस कर रहे थे कि हमें कुछ रिजल्ट्स आए ऑन फील्ड, हमने वो यूरिया ट्रीटेड वीट स्टॉक के ऊपर काम किया और इस तरह की और भी ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बात की। तो सर अगर हम दुनिया में देखें तो यूनिवर्सिटीज़ हमेशा जो ट्रेनिंग्स या उनकी जो वर्किंग्स होती हैं वो इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इस मेरे छोटे से ही प्रोफेशनल करियर में ही, कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काफ़ी इस बात में काफ़ी बैक एंड पे हैं एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट मार्केट या कमर्शियली लोग जो काम कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जो मुझे चैलेंजेस फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन में आ रहे हैं और उसके ऊपर मुझे कोई ट्रायल्स वगैरह रन करने हैं, कंपैरेटिवली उसको मैं देखूं जहाँ पे हम फॉरेस्ट टू कंसिडरेशन रेशो के ऊपर बहस कर रहे होते हैं, हम इन एनिमल के इंटेक्स के ऊपर बहस कर रहे होते हैं, तो जब मैं उसके ऊपर जाऊँ तो ये जो हमारे पुराने कॉन्सेप्ट चलते आ रहे हैं कि हम यूरिया के साथ ट्रीट कर दें, मिनरल ब्लॉक्स के ऊपर काम कर दें,
तो वो इस चीज़ों से उनकी कंपैटिबिलिटी आपस में नहीं बिल्डअप होती। तो इस पे सर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे कि क्या यूनिवर्सिटीज़ के एंड से चीज़ें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए या हमें प्राइवेट सेक्टर या कमर्शियल सेक्टर को पुश करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को कि वो इसके ऊपर भी रिसर्च वगैरह कंडक्ट करवाएं? देखिए जी, ये बड़ा एक जेन्युइन इश्यू है हमारा कि यूनिवर्सिटीज का इंडस्ट्री के साथ लिंकेज करने को तो हम करते हैं कि वी हैव गॉट लिंकेज विद दिस इंडस्ट्रीज, बट लिटरली कोई लिंकेज नहीं होता। इसके लिए यूनिवर्सिटीज को बड़ी ऑनेस्टली स्पीकिंग कि यूनिवर्सिटीज को अपना लेवल रेज करना है। अगर यूनिवर्सिटीज इंडस्ट्री के प्रॉब्लम पे ट्रबल शूट करेगा तो डेफिनेटली इंडस्ट्री उनके साथ कांटेक्ट करेगी। HEC ने पिछले कोई 5-6 साल पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि जी 60% पैसा HEC देगी, 40% इंडस्ट्री देकर, तो एक जॉइंट प्रोजेक्ट बनाकर आप देखें इनसे करें। तो आई वाज डीन एट दैट टाइम अपनी फैकल्टी का, तो मैं आई टॉक टू माय डिफरेंट प्रोफेसर्स एंड आई माई सेल्फ टॉक टू सम इंडस्ट्री पीपल। वो कहते जी हमें क्या जरूरत है काम करने की, आप हमें कोई सोल्यूशन है तो वो दें। ये यकीनन एक लिंकेज होना चाहिए और यूनिवर्सिटीज को उस लेवल पे आना है। अब दुनिया की यूनिवर्सिटीज में, अमेरिका की मिसाल देता हूँ, वो इंडस्ट्रियलिस्ट आता है, वो कहता है जी इतने पैसे मेरे पास हैं, ये मेरा इशू है और ये बता दो। वहाँ प्रोफेसर इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, जब उनका डिसीजन हो जाता है तो वो उसको पैसे दे देता है, उसका सोल्यूशन हो जाता है। तो ये यकीनन करना है, इसके बगैर आगे बात नहीं चलेगी। और अब इस वक्त तक जो लिंकेज तकरीबन जीरो के बराबरी है। आई थिंक दिस इज समथिंग जो कि इट्स एन एरा जहाँ पे हमें काम कर रहे हैं। तनवीर भाई आप कुछ बोल रहे हैं? मैं एक जी सेकंड अफजल में, साहब, जी मैं आपको थोड़ा सा, मेरा ख्याल है ये इंडस्ट्री लिंकेज वाला जो मसला ना यूनिवर्सिटी वाला, यूनिवर्सिटी को पहला नंबर 1 दे शुड गेट आउट ऑफ बिजनेस। अगर उन्हें बिजनेस करना है तो दे शुड मेक ए कंपनी और उनको यानी अपनी तनख्वाह नहीं दें, उसको कंपनी को चलाएं और उसको कंपनी को रन करने दें और वो सारा कुछ करे। अदरवाइज universities if they have solution, if they have a product, the industry is ready to buy it. Yes, yes. We got to develop product और वो प्रोडक्ट जो है वो यूनिवर्सिटी, वो जो है वो यानी इंडस्ट्री खरीद लेगी। ये यानी वैक्सीन बनाते हैं, ये क्या उसको कहते हैं, ये जी न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स है, जो भी हैं, जो भी बनाए इंडस्ट्री खरीदने को तैयार है। असल बात यह है कि वो जो है उसमें है क्या। यानी मुझे यानी अभी तक यानी याद है, कभी तक यानी मैंने एक ट्राई की थी कि भाई आप यूनिवर्सिटी सारी मिनरल ब्लॉक्स बनाएं जो पाकिस्तानी हालात में यानी बगैर यूरिया के प्योर मिनरल ब्लॉक्स बनाएं और वो जनाब यानी कमर्शलाइज वाली लाएं। ठीक है, आज तक वो ब्लॉक जो हैं यूनिवर्सिटीज को भी ऑफर की गई, यानी RC को भी ऑफर की गई, यानी वो ब्लॉक बन के मार्केट में नहीं आए। यानी एक्सेप्टेबिलिटी जी, वो जी जो बाइंडर है वो जी हुआ जी, ये उस पर ये, यानी मेरे कहने से जो लोग इंडस्ट्री में बैठे हैं उनको तो चीज चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज जो है वो ज्यादा फोकस उनका रिसर्च पे के पब्लिकेशन पे है, उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे कोई फोकस नहीं। और ये HEC ने जो एक चीज़ गलत की है वो ये हुआ है कि जनाब यानी आपका इम्पैक्ट फैक्टर ऊपर है लेकिन सोसाइटियल इम्पैक्ट यूनिवर्सिटीज़ का बहुत कम है। इवन HEC के चेयरमैन ने मुझसे बात की कि भाई हमारा इम्पैक्ट फैक्टर तो इतना बढ़ गया लेकिन यानी सोशल इम्पैक्ट जो है यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूशन इनटू लोकल इंडस्ट्री वो बहुत थोड़ी है। अदर देन कि यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स मैन पावर, और मैन पावर जो है वो यूज होती है, सारे हम यूनिवर्सिटीज के ही पढ़े हुए हैं, वो सारे वो एक अलग है उसके, लेकिन एज ए रिसर्च एज ए प्रोडक्ट हमारा स्टिल इशू है। ओवर।
थैंक यू सर। आई थिंक ये जितने भी इशू हैं बड़े वाइब्रेंट्स हैं और वी नीड टू एड्रेस देम, और हमें इस तरह की बहुत सी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करने चाहिए। आई हैपन टू विजिट इन 2019 में, मैं एनसी में यूएसए में कोर्स कर रहा था, तो मैं उस प्रोफेसर से डिस्कस कर रहा था कि व्हाट इज़ द सिनेरियो। तो उन्होंने बताया कि हमारी जो 50% सैलरी है वो प्रोजेक्ट बेस्ड होती है, और जो 50% है वो हमें यूनिवर्सिटी पे करती है। तो वी हैव टू फेच द प्रोजेक्ट्स। प्रॉबेबली आई एम अ वेरी वो क्या कहते हैं कि स्मॉल स्केल पर्सन हूँ, आई कांट गिव दिस कमेंट, बट दिस इज द एरा जहाँ पे हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स के ऊपर काम कर सकते हैं और हम सोल्यूशन प्रोवाइडर बन सकते हैं यूनिवर्सिटी साइड से। क्योंकि मैं एब्सोल्युटली एग्री करता हूँ कि कोई भी बड़ी कंपनी को प्रोडक्ट डेवलप करना चाहती है तो दे कैन नॉट पुट so much investment, so they have to make alliance with the universities to make some product lines. But anyhow, let me thank you all, and especially Professor Dr. Sarwar साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आपने हमें अपने नॉलेज के साथ जो है ना अपना नॉलेज हम सब लोगों के साथ शेयर किया। एंड आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ टेक होम मैसेज, और जो मेरे लिए जो की मैसेज जो मैंने इसमें से निकाले हैं वो यही है कि वी मस्ट ऑल बिलीव इन दिस फैक्ट कि पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और स्पेशली हमारा जो एग्री बिजनेस का जो सेगमेंट है ये बड़ा वाइब्रेंट है। व्हाट वी ऑल नीड इज कि वी नीड टू डेवलप द क्लैरिटी और अलाइनमेंट इसके अंदर बिल्ड करनी है। इस सेगमेंट को एज अ रेकन करना है एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री के तौर पे, और इसके तमाम चैलेंजेस और इश्यूज को हमने देखना है कि कौन सा सेक्टर, कौन सा सेगमेंट, क्या अटेंशन चाहिए और कैसे हम अपनी मार्केट लीड्स को डेवलप कर सकते हैं। और उसके लिए इंपॉर्टेंटली जो हमारे पास ब्रेन्स हैं उन तमाम ब्रेन्स को एक जगह लेके आना, उनसे आइडियाज़ लेने, उन आइडियाज़ के ऊपर हमें अपने एक्शन प्लान्स बिल्ड करने, और जब उन एक्शन से हमारे पास कोई अच्छे मॉडल्स बिल्ड होते हैं तो उन मॉडल्स को हमने रिपीटेबल मॉडल्स बनाना है, और उन तमाम चीज़ों को हमने 3 बॉक्स स्ट्रेटजी के जरिए ख़त्म कर देना है कि जो हमारे लिए वर्केबल नहीं है। विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, जो लोग हमें देख रहे हैं, जो बाद में भी सुनेंगे उनका भी बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल हो, प्लीज़ आप हमें भेज सकते हैं। हम डायरेक्ट डॉक्टर साहब से अगेन इन सवालों के जवाब भी ले सकते हैं और दोबारा हम आपको रिकनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, और मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा आप जहाँ पे भी हैं अपने आप को महफूज रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को महफूज रखें। स्टे एट होम, स्टे सेफ। Thank you very much. Stay tuned, and we'll see you next time. Thank you very much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Thank you very much.